थोड़ा रिकैप कर रहे थे लास्ट क्लास का. If you have a vector, you can always write it, this vector in terms of components a1I, b1j plus c1k. If you have another vector b, you can also write this in terms of its components a2I, b2j plus c2k, right? And if you find dot product of two vectors in terms of components is always a1, a2, b1, b2, c1, c2. It is called dot product or scalar product as you place a dot in between. Also, A dot B is A mod B mod cos theta. A dot B is always B dot A because dot product of vectors is commutative. Good evening, sir. Good evening. Kavya, switch on your camera. Sir, one second, I'm just getting the book. Okay. Hello, sir. हेलो. ये व्यू कैसा क्यों आ रहा है? देख नहीं पा रहा. A dot B is B dot A, that is dot product is commutative. And if, आ जाओ जल्दी आओ. If theta is 90 degree, then A dot B is always equals to 0. ये हमने last class में किया था. Also, if you want to know what is the angle between two vectors, we can use this formula A dot B divided by mod A into mod B. If the two vectors A and B, then the angle between them would be A dot B divided by mod A mod B. अगर हमें A और B components के फॉर्म में दे रखे हैं, so this is A1 A2 B1 B2 C1 C2 divided by root of A1 square B1 square C1 square. This is root of A2 square B2 square C2 square. एक क्वेश्चन करो. Find angle between two vectors A and B. Find angle between two vectors A and B if A is 2I minus 3j plus 4k and vector B is 4I minus k plus 5j.
Vector A has been given its terms of component. Vector B has also been given. You need to find cos theta. You can use this formula. लास्ट क्लास का रिवाइज किया था. करो, क्वेश्चन करो. क्या आ रहा है काव्या? minus 11 upon um root. एक सेकेंड, I'm just doing the last. ओके. सम्मित, तुम्हारा क्या आ रहा है? देखो कुछ कहाँ पे कुछ गलती हो रही है. नंदिनी, व्हाट इज योर आंसर? तो मैं कर रही हूँ. अब तो और छुट्टियां वुट्टियां नहीं लोगी ना तुम, नंदिनी? नहीं सर. मैम बात करेंगे तुम लोगों से, जिया से भी और नंदिनी से भी. बहुत क्लास मिस हुई है. क्लास कम अटेंड हुई है, मिस ज्यादा हुई है. मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गेम खेला था. मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया था. मैंने के को पहले लिख दिया था. तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया ना? हाँ. नहीं तो देख, but it doesn't make a difference, right? You It can will turn it make a lot of difference because we need to first, I mean, you multiply A with I wala, J with J and K with K. Yeah, so I did that only. हाँ हाँ, इससे तुम्हारा सही आ रहा है. Yours is correct. Divided by root A कितना हो जाएगा? 4 प्लस 9 प्लस 16 है ना? Yeah, it's मैग्नीट्यूड. no, it's minus 11 upon root 29 into root 41. हम्म. No, 42. Right. So this is the angle between the two vectors. So theta is equal to cos inverse minus 11 divided by रूट 29. 42 को भी इकट्ठा लिख दो. रूट 29 इंटू 42. फिर इसे ऐसे ही छोड़ना है ना. क्या? इसे ऐसे ही छोड़ना है ना. हाँ, ऐसे ही कांट डू एनीथिंग आफ्टर दिस. ओके. अगर सपोज ये 1/2 आ रहा होता या √3/2 आता, देन यू कैन टेल कि थीटा कितना आ रहा है. बट अदरवाइज यू कैन लीव इट लाइक दिस ओनली. शौर्य, तुम्हारा हो गया? हम्म. ये माइनस के था ना, तो -1 × 4 होगा वो ये वाला. दिस वुड बी -1. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Find M and N if vectors A and B are parallel. 4mj
हो गया? ठीक है. This is 42. This won't be negative. All these are positive, no minuses. Find M and N if A and B are parallel. You've been given A and B both. A is 3i plus 4mj plus 7k. B is 5ni plus 6j plus 2k. The two vectors are parallel. That is, the angle between them is 0 degree. See, if two vectors are parallel, the dot product will not be 0. Dot product is 0 only when they're perpendicular. Any idea what to do? जिया, क्या करना चाहिए? थीटा अगर तुम जी cos थीटा वाला फॉर्मूला लगा दो, cos 0 1 आएगा. देयर बी टू अननोन्स. एक इक्वेशन से दो अननोन कैसे सॉल्व करोगे? नहीं. अगर हम यहाँ पे थीटा को 0 डाल दें, सॉल्व करें, इसमें एम एन आ रहेगा, इसमें एम स्क्वायर आएगा, इसमें एन स्क्वायर आएगा. So you'll have only one equation and two unknowns. We can't solve. This formula you can't use. Remember that whenever two vectors are parallel, one vector would be scalar multiple of other. अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं, ये A है, ये B है, तो B would be lambda times A. One vector would be scalar multiple of the other vector. Lambda is some scalar number. I'll explain you again. मान लो दो वेक्टर हैं, दोनों वेक्टर एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं. एक वेक्टर है 5i कैप, ऑफ कोर्स एक्स एक्सिस से पैरेलल हो गया. दूसरा है 11i कैप. बोथ द वेक्टर्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस. तो मतलब एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल है. कि देखो कैसे आएगा स्केलर मल्टीपल. ये ए है, ये बी है. तो कैन आई से दैट ए इज, ए तो मुझे दे रखा है 5i. कैन आई राइट दिस एज 5/11 इंटू 11i. 11 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया. ठीक है. क्यों किया? बिकॉज बी इज 11i. तो 5/11 बी आ गया. सिंस द टू वेक्टर्स आर पैरेलल, ए इज स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर. तो जब भी दो वेक्टर पैरेलल होंगे, दे विल बी स्केलर मल्टीपल ऑफ द ईच अदर. ठीक है. मतलब एक वेक्टर दूसरे का कुछ मल्टीपल होगा, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 1.5 टाइम्स, -2 टाइम्स. सो रिमेंबर दिस. Whenever two vectors are parallel, one vector would be scalar multiple of the other. इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर वो वेक्टर्स कंपोनेंट्स के फॉर्म में हैं, तो उस सिचुएशन में their components would be in same proportion. X component by X component, Y component by Y component, Z component by Z component. तो अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, तो one vector would be scalar multiple of the other. At the same time, उनके कोएफिशिएंट would be in the same proportion. इसको तुम यहाँ पे यूज कर सकते हो. So if two vectors are parallel, one vector would be scalar multiple of other. That is, their components would be in proportion. तो इसको यूज कर लेते हैं अब. 3 divided by 5n is equal to
4m डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 7/2। उनके कंपोनेंट्स को सेम प्रोपोर्शन में ले लिया। एक बार फर्स्ट एंड लास्ट प्रोपोर्शन ले लो। सो 3/5n इज इक्वल टू 7/2। n की वैल्यू आ जाएगी 6/35। यही है। m कितना आ रहा है? नेक्स्ट टाइम यू टेक दिस, so that will give you m is equal to 21/4। और तुम डाल के वेरीफाई कर सकते हो वैल्यूज को। वंस यू सब्स्टिट्यूट वैल्यूज ऑफ m एंड n, दे वुड बी स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर। देखो, अगर मैं ये इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो दिस वुड बी 3i। m की जगह कितना आ रहा है? 21/4, तो जाएगा 21j प्लस 7k। यहाँ पे n की जगह कितना है? 6/35, तो कितना हो जाएगा वो? 35 5 से कट जाएगा ना। 6/7i प्लस 6j प्लस 2k। श्योर समझ में आ गई? तो आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग m and n, नाउ दीज टू वेक्टर्स आर स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर। मुझे बताओ, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? इसको देख लो, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि ये वेक्टर आ जाए? सोच सकते हो? बी वेक्टर को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं ताकि वो आ जाए? यस, फिर से 7/2। अगर बी वेक्टर को मैं 7/2 से मल्टीप्लाई करूंगा, लेकिन सर हमारा क्वेश्चन तो पहले ही सॉल्व हो गया। हाँ, क्वेश्चन तो पहले ही सॉल्व हो गया ना। वो तो हो गया सर, मैं वेरीफाई करके बता रहा था। चलो। तो ये ए आ जाएगा फिर। दैट मीन्स, जो मैं बोल रहा था कि वेन एवर टू वेक्टर्स आर पैरेलल, वन वुड बी स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर। एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल है। आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। Suppose this is vector A and this is vector B. This angle is theta. So projection of A on B का मतलब है कि अगर इसके दोनों एंड से we draw perpendicular on B, then this length will be called projection of A on B. This is 90 degree. ऐसे मान लो, if you have a vector A and this is vector B, vector B के perpendicular अगर तुम लाइट डालोगे तो उसका जो ए का शेडो बनेगा, दैट इज नथिंग बट प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। इफ लाइट इज इंसिडेंट परपेंडिकुलर टू बी, तो उसकी शेडो बनेगी ए की, वो कहलाएगी प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। नाउ ये तुम्हें रिजल्ट याद होना चाहिए किसी भी राइट ट्रायंगल में। इफ यू नो हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या होता है? हाइपोटेन्यूज इनटू cos theta, and the perpendicular is always hypotenuse into sin theta। किसी भी राइट ट्रायंगल में अगर हमें हाइपोटेन्यूज पता है, एंगल पता है एक, तो बेस हमेशा h cos थीटा होता है।
ये राइट ट्रायंगल है, इसमें हाइपोटेन्यूज कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए थीटा है, तो ये लेंथ कितनी हो जानी चाहिए फिर, दिस वुड बी सिंपली ए कॉस थीटा। दिस इज राइट ट्रायंगल, ये 90 डिग्री है, हाइपोटेन्यूज की लेंथ ए है, तो दिस वुड बी ए कॉस थीटा। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी would be basically a cos theta, where theta is the angle between the two vectors. इसमें काम करते हैं, मॉड बी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, बी से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ व्हाट इज द न्यूमरेटर, ये किसके बराबर है, अभी तो किया तुम लोगों ने, इट इज ए डॉट बी। ए डॉट बी तो होता है ए बी कॉस थीटा। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का। इसको याद करने का बड़ा सिंपल तरीका है, अगर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी है, इसका मतलब इट विल बी वुड बी इन द डिनोमिनेटर। If it is projection of A on B, B would be in the denominator. और अगर तुम्हें डायरेक्शन भी बतानी है फिर क्या होगा, ए का प्रोजेक्शन बी पे किधर होगा, बी की डायरेक्शन में होगा ना, तो हाउ टू गिव डायरेक्शन, बी की डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर होगा, शौर्य, व्हाट इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी, बी कैप, बी कैप इज बेसिकली यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी, इसको बी कैप से मल्टीप्लाई कर दो। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर गिव्स यू ओनली डायरेक्शन, उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो हमें अगर किसी स्केलर को, ये तो स्केलर नंबर है अभी, है जैसे प्योर नंबर, जैसे प्योर नंबर 2 3 5 लाइक दैट, इसको अगर डायरेक्शन देनी है तो उसको बी कैप से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो अगर क्वेश्चन आता है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी अलोंग विद द डायरेक्शन, तो हम इसको बी कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे। नंदिनी, बी कैप का फॉर्मूला क्या होगा, हम्म, यूनिट वेक्टर को कैसे डिफाइन किया था, किसी वेक्टर को अगर उसके मॉड से डिवाइड करोगे तो क्या आता है, यूनिट वेक्टर। इफ ए वेक्टर इज डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, इट इज अ यूनिट वेक्टर। फिजिक्स में कंटिन्यूअसली तुम्हें कंसिस्टेंटली पढ़ना पड़ेगा, वरना आप जब स्कूल में टेस्ट होगा तो हैप्पी बर्थडे होने में टाइम नहीं लगेगा। इट्स बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट्स, शुरू में तो समझ में आएगा, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे न्यूमेरिकल्स घर पे। अभी बहुत सारे तुम्हारे दोस्त मस्ती में हैं इस समय, 10th के बोर्ड में 99% 95% नहीं, बहुत अच्छे मार्क्स, कितने आए संबित, ऐसी है 94। हाँ, अब 11th में क्या होगा, 9 बन जाएगा 6, अगर पढ़ाई नहीं हुई तो। फ्रेंड्स वैसे ही गुमराह कर देंगे, अभी क्या करना है पढ़ के, अब तो बोर्ड नहीं है इस साल। बट दिस ईयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, डोंट वेस्ट एनी टाइम। एटलीस्ट जो पढ़ाया जा रहा है फिजिक्स में उसको सेम डे रिवाइज करो, और असाइनमेंट से क्वेश्चन करते रहो। 1:10 का रेशो होना चाहिए, अगर मैंने 4 क्वेश्चन किए, घर पे तुम्हें 40 क्वेश्चन करने हैं खुद से, तब जाके कुछ हो पाएगा फिजिक्स में, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। और पढ़ोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर तो कर लोगे, कॉन्फिडेंस तुम्हारा, फिजिक्स विल बिकम योर फेवरेट सब्जेक्ट, सच ए स्कोरिंग सब्जेक्ट। तो ये था प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। लाइट चली गई। कोई बात नहीं, अब आ गई ना, हमने प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी निकाला, एक तो स्केलर, दूसरा डायरेक्शन। बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है बी कैप, तो बी कैप से मल्टीप्लाई कर दिया, बी कैप इज बी बाई बी मॉड, तो ये आ गया फॉर्मूला। अगर
एमसीक्यू में दे रखा है सिर्फ प्रोजेक्शन, ऑप्शन देख के पता लग जाएगा। विदाउट डायरेक्शन तो ये कर दोगे, ये से प्योर नंबर ए डॉट भी निकल आएगा, बी मॉड पता है तुम्हें। याद करने का तरीका, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकाला जाएगा वो हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है। ए का प्रोजेक्शन बी के ऊपर, मतलब बी इज अ इन द डिनोमिनेटर। नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट इज प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, बड़ा सिंपल है। ऑन ए का मतलब ए शुड बी इन द डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में आ जाएगा ए डॉट बी, सिंपल। सो दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। डायग्राम में अगर समझना चाहते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहां से परपेंडिकुलर डालें तो दिस लेंथ इज प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, दैट इज इट इज बी cos थीटा। तो जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालोगे वो हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा। और अगर अलोंग विद द डायरेक्शन देना है तो दिस प्रोजेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ ए, तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? जैसे प्योर नंबर, इसको ए कैप से मल्टीप्लाई करोगे। व्हाट इज ए कैप? ए कैप इज वेक्टर ए, any vector divided by its magnitude is a unit vector. So this is in terms of direction. So question को तुम्हें देख के पता लग जाएगा कि डायरेक्शन पूछी है नहीं पूछी है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जिसके भी टेस्ट में कुछ एक्स्ट्रा अगर आ रहा है तो वो तुम्हें मेरे साथ एक्स्ट्रा क्लास में करना होगा। गुड़गांव सेंटर पे जो लोग हैं उनको आफ्टर द क्लास स्टे करना होगा। यू विल बी स्टेइंग टुडे। एंड साउथिक सेंटर तो संडे तुम लोग तो रुकते ही हो, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन करते हैं। फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, बी ऑन ए, विद एंड विदाउट डायरेक्शन, सारा करना है। ए दिया हुआ है 4i प्लस 2j माइनस 3k, बी दिया हुआ है i प्लस 3j प्लस 5k। चार, इसके चार आंसर आएंगे। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, नंबर ये वाला, दूसरा डायरेक्शन के साथ, तीसरा नंबर, एंड चौथा ये। आराम से करो, टेक योर ओन टाइम। फिर हमें क्या निकालना है? प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी with or without direction, and projection of B on A with or without direction. मतलब ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है और ये फाइंड करना है। पहले ए डॉट भी निकाल लो, वो तो तुम्हें आता ही है। ए और बी का मैग्नीट्यूड निकाल लो। फिर मैग्नीट्यूड निकालने में हम यूनिट वेक्टर्स नहीं यूज करते ना। हाँ देखो, अगर सिर्फ प्रोजेक्शन निकालना है विदाउट डायरेक्शन तो सिर्फ ये आंसर आ जाएगा पहला पार्ट। जैसे कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ऑफ ए ऑन बी विदाउट डायरेक्शन होगा ए डॉट बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ए डॉट बी कितना आ रहा है? 4, 2 into 3, 6, minus 3 into minus 15, minus, -5। and this is b mod कितना आएगा? 1 square, 3 square 9, 5 square 25,
तो ये आ गया तुम्हारा पहला पार्ट का आंसर, -5 डिवाइड बाय √35, बरोबर है। तो दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, इसे प्योर नंबर लेंथ, ये लेंथ आ गया। लेकिन अगर पूछा होता अलोंग विद द डायरेक्शन, तो अलोंग विद द डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ, इसी चीज को हम मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्शन के साथ, या तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, ठीक है, या इसको बी कैप से मल्टीप्लाई कर दो, बिकॉज ए का प्रोजेक्शन बी पे, बी की डायरेक्शन में, तो बी की डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ, बी कैप से मल्टीप्लाई करना है मुझे। तो अगर मुझे विद डायरेक्शन निकालना है तो इसी नंबर को आई कैन मल्टीप्लाई बाय बी कैप। व्हाट इज बी कैप? बी कैप का मतलब होता है B upon mod. वेक्टर बी डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, या फिर तुम डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, एक ही बात है। हम्म, ठीक है। तो ये भी √35 हो जाएगा, √35 इंटू √35, 35 हो जाएगा। और बी वेक्टर तुम्हें दे रखा है ऑलरेडी, I +3J +5K। तो डायरेक्शन के साथ आंसर है इसका -1/7 I +3J +5K। कोई डाउट है तो पूछ लो, विदाउट डाउट, विदाउट एनी हेजिटेशन, ठीक है। श्योर है तुम्हारा? तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी विदाउट डायरेक्शन एंड विद डायरेक्शन, ये आएगा। आई कुड हैव यूज दिस फॉर्मूला डायरेक्टली ऑल्सो, तभी वही आंसर आएगा। देखो ए डॉट बी कितना था, -5, मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर हो जाएगा 35, एंड बी वेक्टर हमें मालूम है ऑलरेडी, दिस विल ऑल्सो गिव द सेम आंसर। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, ये करो, हो गया। द सेकेंड पार्ट इज projection of B on A. This would be A dot B on A का मतलब A से डिवाइड करना है। A डॉट बी ऑलरेडी निकाला हुआ है तुम लोगों ने, -5, मैग्नीट्यूड ऑफ A कैसे निकलेगा, 4² 16, 2² 4, 3² 9, दैट इज -5 डिवाइड बाय √29, ये आ रहा है। सेकेंड पार्ट में इसका डायरेक्शन भी चाहिए था, तो डायरेक्शन में ऑन ए का मतलब ए से मल्टीप्लाई करना है, या फिर यू कैन यूज दिस फॉर्मूला डायरेक्टली, अलॉन्ग विद द डायरेक्शन करना है तो या तो फॉर्मूला यूज कर लो, या अदरवाइज ए कैप से मल्टीप्लाई कर दो। ए कैप इज वेक्टर ए बाय स्मॉड, ए मॉड ऑलरेडी निकाला हुआ है तुमने, √29, रूट हट जाएगा मल्टीप्लाई होके। ए इज बिन गिवन टू यू 4I +2J-3K, ये सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया, यही है। ठीक है नंदिनी, काव्या, जिया, हो गया शौर्य? लास्ट पार्ट में डायरेक्शन था ना, तो लास्ट पार्ट में या तो तुम ये यूज कर लो, हाँ तो ये √29 तो हो गया, दिस इज √29, तो √29 √29 हो जाएगा। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन।
if A and B are unit vectors such that A plus B mod magnitude is 1, find angle between A and B. A और B दो यूनिट वेक्टर्स हैं, हमें गिवन है A plus B whole mod magnitude is equal to 1. You have to find angle between A and B. Hmm. But I didn't understand. Hmm? I didn't understand. Yeah. So if it's a unit vector, shouldn't its magnitude be 1? Yes. So then why is 1 plus 1 equal to 1? Because A plus B is not a unit vector. In vectors, can I say that mod of magnitude of A plus B equal to magnitude of A plus magnitude of B? Can you say this? It's not Or possible. फिर A का magnitude 1 है, B के magnitude भी also 1 है because दोनों unit vector हैं, but A plus B is not a unit vector. सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझो, वेक्टर में 2 plus 2 हमेशा 4 नहीं होगा, इट कुड बी 0 ऑल्सो. अगर दो वेक्टर हैं 5 न्यूटन के एंड दे आर एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, द रिजल्टेंट वुड बी 0. सो इस वेक्टर अलजेब्रा मैं तुम्हें हिंट दे देता हूं, इट इज बेस्ड ऑन डॉट प्रोडक्ट. ए डॉट बी क्या होता है? मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा, राइट? तो इफ आई फाइंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद इटसेल्फ, तो क्या आएगा? मैग्नीट्यूड ए अगेन मैग्नीट्यूड ए कॉस जीरो होता है 1. तुम लोग यहाँ पे ये वाला रिजल्ट यूज कर सकते हो, किसी भी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसी के साथ हमेशा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर होता है. दिस इज अ हिंट, यूज दिस. समझ में आ गई हिंट या नहीं आई? ऐसा करो फिर, आर बी मोर एक्सप्लिसिट, इसको दोनों साइड को स्क्वायर करो, ठीक है? स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स. ये बात समझ में आती है? अब लेफ्ट साइड में कैन आई राइट ए प्लस बी वेक्टर डॉट ए प्लस बी और नॉट, यूजिंग ए डॉट ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर? इसको यूज करके कैन आई राइट दिस और नॉट? फॉर अ मोमेंट इसको ए मान लो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर इज ए डॉट ए. समझ में आ रहा है अब जिया? तो दिस इज हाउ यू कैन रिमूव मैग्नीट्यूड और मॉड्यूलस साइन. अब इसको तुम ओपन कर लो, अब तो आ जाएगा आंसर. कैसे ओपन करोगे? ब्रैकेट कैसे ओपन करेंगे? शौर्य दे रहा, देखो इधर. अब ए डॉट ए, अब मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी इक्वल्स टू 1. नाउ वी हैव ओपन द ब्रैकेट्स. ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं, बीच में डॉट लिखा हुआ है. ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी इक्वल्स टू 1. इसमें कोई डाउट नंदिनी? नाउ व्हाट इज ए डॉट ए? अभी किया था तुमने.
ए डॉट ए कितना होता है? 1 या फिर मॉड ए का mod स्क्वायर। square। ए डॉट बी इज द सेम एज बी डॉट ए, तो मैं इसको ट्वाइस ए डॉट बी लिख देता हूँ बिकॉज डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है। बी डॉट बी कितना हुआ? बी का स्क्वायर। लेकिन ए और बी क्या है? ए और बी है यूनिट वेक्टर। दैट मीन्स मॉड ए इज इक्वल टू मॉड बी इक्वल टू 1। हमें गिवन था दैट ए एंड बी बोथ आर यूनिट वेक्टर्स, तो दोनों का मैग्नीट्यूड 1 हो गया। ठीक है, 1। इसको तुम ओपन कर दो डॉट प्रोडक्ट से, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ये वापस 1 हो गया। अब देखो यहां तक कोई डाउट? संबित? ठीक है, शौर्य? अब तुम निकाल लो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है। क्या आ रहा है? ये हो जाएगा 2 × 1 × 1 बिकॉज मॉड ए मॉड बी 1 है। कॉस थीटा इक्वल टू -1, कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2। कॉस थीटा माइनस हाफ कब होता है नंदिनी? ट्रिगो में सब कर चुके हैं हम लोग ये। 120 120 डिग्री सेल्सियस डिग्री या एम्पियर? 120 डिग्री है ना? व्हेन थीटा इज 120 डिग्री, कॉस 120 माइनस हाफ होता है। ठीक है, सो दैट्स आंसर। एक ऐसा और क्वेश्चन करोगे? फाइन थीटा इफ ए कैप माइनस बी कैप होल मॉड इज इक्वल टू √2। कर लो। फाइन थीटा इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप इक्वल्स टू √2। कई बार कैप नहीं लगा होता बट क्वेश्चन में मेंशन होता है वो यूनिट वेक्टर है। सेम वैसे आंसर करो उसको भी। फिर तो ए क्या आप निकालने में वो करना पड़ेगा, ए ओवर मॉड ए। क्यों? अभी जो किया था वही करो ना, दोनों साइड को स्क्वायर कर दो, फिर मॉड हट जाएगा, फिर ब्रैकेट ओपन कर दो। अच्छा सेम जो चीज। अभी क्वेश्चन किया था सेम क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा सा आंसर डिफरेंट आएगा इसका। सेम स्टेप्स जो अभी किया था वही करना है। Magnitude of a cap minus b cap is been given as √2, squaring both the sides. So mod of a cap minus b cap whole square is equal to 2 हो जाएगा। फिर वाला फंडा यूज करो, a cap minus b cap डॉट a cap minus b cap।
इज इक्वल टू 2। ठीक है, फिर ब्रैकेट ओपन करो, ए कैप डॉट ए कैप डॉट बी कैप माइनस बी कैप डॉट ए कैप प्लस हो जाएगा माइनस माइनस बी कैप डॉट बी कैप। सिंस ये यूनिट वेक्टर ए डॉट ए तुम्हें मालूम है कितना होता है, ए कैप का होल स्क्वायर, ये दोनों सेम हो जाएंगे ट्वाइस ए कैप डॉट बी कैप, ये हो जाएगा मॉड बी कैप का होल स्क्वायर। दे आर यूनिट वेक्टर्स, तो जाएगा 1, इसको ओपन कर दो, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, दिस इज ऑल्सो 1 इक्वल टू 2, ये सारा कट जाएगा, दिस इज 2 इंटू 1 इंटू 1 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। लो कर लो बात, कॉस थीटा 0 आ रहा है। ठीक, कॉस थीटा 0 का बता शौर्य, बताना जरा, थीटा की किस वैल्यू पे 0 होता है कॉस? 90, है ना? So that means the two unit vectors are perpendicular to each other. The two vectors are, क्या हुआ कव्या, लाइट जा रही है बार बार? थीटा इज 90 डिग्री। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आता है, किया था? आता है ना सबको, नंदिनी, Yes. जिया एंड काव्या, आता है ना? एक क्वेश्चन करते हैं उसमें, ये लिख लिया? हम्म। Suppose we have a regular hexagon like this. P, Q, R, S, T, U. PQ vector has been given to you as vector A, and QR vector has been given to you as vector B. ये मैं given है। रेगुलर हेक्सागन में इंटीरियर एंगल कितना होता है? 120। ठीक है, किसी भी पॉलीगन में ऑफ एन साइड, रेगुलर पॉलीगन ऑफ एन साइड, इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है ये वाला। इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज ऑलवेज n-2 इंटू 180 बाई n, लिख लेना है, काम आएगा। इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन, तो अगर मैं n को 6 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये वैल्यू 120 डिग्री आती है। जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड बढ़ती जाती है पॉलीगन की, इंटीरियर एंगल भी बढ़ता जाता है। द इंटीरियर एंगल कैन नॉट बी मोर देन 180, अदरवाइज वो फिर रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब माय क्वेश्चन फॉर यू इज कि ए वेक्टर बी वेक्टर के टर्म में तुम्हें बताना है व्हाट इज वेक्टर यूएस, व्हाट इज वेक्टर टी क्यू, व्हाट इज वेक्टर आर टी, व्हाट इज वेक्टर पी आर, यू आर, क्यू यू, यूपी। In terms of vector A and vector B, find all these vectors. There's no hurry, take your own time. Triangle लॉ सबको मालूम है, थोड़ा रिकैप करा देता हूँ। अगर ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, अगर हम फर्स्ट वेक्टर की टिप पे सेकंड वेक्टर का टेल रखेंगे, देन रिजल्टेंट कैसे मिलता है? टेल ऑफ द फर्स्ट टू द टिप ऑफ द सेकंड गिव्स यू द रिजल्टेंट। ये ट्रायंगल लॉ। पैरेललोग्राम मेथड में क्या होता है, दोनों वेक्टर्स को विड्रॉ एज को इनिशियल वेक्टर्स।
और जो इन देन कंप्लीट अ पैरेललोग्राम, तो बीच का जो डायगोनल होता है इन दोनों का, दैट गिव्स अस रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। 10 minutes, आंसर ऑल पार्ट्स। जो नहीं होंगे आई डिस्कस। रेगुलर हेक्सागन में ऑपोजिट साइड जैसे पी क्यू एंड टी एस आर पैरेलल, ठीक है। दैट वे ओ पी क्यू आर इज अ पैरेललोग्राम। देखो, ओ पी क्यू आर इज अ पैरेललोग्राम। तो पी क्यू ओ आर के पैरेलल है, ओ आर टी एस के पैरेलल है। और रेगुलर हेक्सागन में हर ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। मैंने तुम्हें हिंट दे दिया है। सर आपने लास्ट क्या बोला? रेगुलर हेक्सागन में जितने भी ट्रायंगल बन रहे हैं ना, सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 60-60 है सारे सबके एंगल्स। ओके। यू आर इज पैरेलल टू पी क्यू, टी एस इज ऑल्सो पैरेलल टू पी क्यू, मतलब ऑपोजिट साइड जो है ना, वो पैरेलल है एक दूसरे के। जिया कुछ किया? थोड़ा बहुत। काव्या? फिर एक साइड कौन सी साइड वाला आ गया? पी आर। पी आर, ओके। पी आर तो बहुत सिंपल था, मैं भी कर लेता। ओके सर। और करूँ? गुड। पी आर में ट्रायंगल लॉ लग रहा है ना, पैरेललोग्राम लॉ भी कर सकते हो। ये वेक्टर
ए है, ये वेक्टर बी है, so this vector has to be a plus b. देखो यहां से हिंट ले लो, दिस इज a, दिस इज b, so this would be a plus b. तो एक तो क्रैक हो गया, काव्या ने कर दिया। सारे ट्रायंगल इक्विलेटरल हैं इसमें। सर हम्म। सर जैसे टी यू हाँ बोलो। टी यू बी होगा ना सर, तो पी यू टी, हाँ। तो एस आर भी होगा। एस आर बी, नहीं एस आर तो देखो ऐसे जा रहा है, बी ऐसे जा रहा है, दोनों की डायरेक्शन भी अलग अलग हैं। अच्छा, okay. देखो अगर मैं तुमसे बोलूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, डू यू एग्री और नॉट? नहीं, अच्छा हाँ हाँ, हाँ या ना, मैग्नीट्यूड, हाँ। मैग्नीट्यूड हाँ। है ना, बिकॉज सारे ट्रायंगल इक्विलेटरल हैं, जैसे रेगुलर हम्म पॉलीगन में सारी साइड इक्वल होती हैं। हम्म तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये वेक्टर ए है, सो व्हाट अबाउट दिस वेक्टर? ओ आर क्या होगा? ए होगा नहीं होगा? हाँ, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। या सिमिलरली ये भी पैरेललोग्राम है। इफ आई आस्क अच्छा, यू व्हाट इज यू ओ, इट विल आल्सो बी ए, ए। या क्यों काव्या? ओके, In fact, TS will also be vector A, बिकॉज मैंने बताया था ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इक्वल तो ही है, रेगुलर पॉलीगन है। सिमिलरली जिया ये बताना, ओ एस को कैन आई राइट बी और नॉट? ओ एस वेक्टर इज बी और नॉट? यस यस, इट्स अ पैरेललोग्राम अगेन। ओ एस आर क्यू, ओ एस आर क्यू इज अ पैरेललोग्राम। तो अब यूएस निकालना बहुत इजी है। कैसे निकलेगा यूएस? ट्रायंगल लगा दो, यू एस ओ, दिस इज ए, दिस इज बी। लो कर लो बात, ए प्लस बी आ गए अभी। यू एस इज ऑल्सो ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। वैसे यू एस आर पी इज अ पैरेललोग्राम। यू एस आर पी, तो हमने पी आर तो ऑलरेडी निकाला हुआ था, तो पी आर इज सेम एज यू एस। टी क्यू निकालने के लिए तुम्हें पहले ओ क्यू निकालना पड़ेगा। एक काम करो, लुक एट द ट्रायंगल ओ आर क्यू। ठीक है, इस ट्रायंगल में दो साइड तुम्हें पता है, ओ आर पता है, क्यू आर पता है। तो if I ask you that, can I say that QO vector plus OR vector is equal to QR vector? Is it correct or incorrect? देखो जरा, इस ट्रायंगल में QO वेक्टर प्लस OR वेक्टर इक्वल टू QR वेक्टर। ट्रायंगल लॉ में क्या होता है, दो वेक्टर अगर सेम सेंस ऑफ रोटेशन में होते हैं, तो रिजल्टेंट हमेशा ऑपोजिट सेंस में होता है। 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 तो रिजल्टेंट हमेशा ऑपोजिट सेंस में होता है।
है ना। जैसे यहाँ पे ये वेक्टर फिर ये वेक्टर सेम सेंस ऑफ रोटेशन में है, तो उनका रिजल्टेंट ऑपोजिट सेंस में है। तो ओ आर एंड आर क्यू, सॉरी, क्यू ओ एंड ओ आर इन द सेम सेंस है, ऐसे हो रहा है ना ये। तो रिजल्टेंट तुम्हारा ये आ गया, तो ये करेक्ट है ये। तो क्यू ओ वेक्टर प्लस ओ आर वेक्टर कितना है, ओ आर इज वेक्टर ए, क्यू आर कितना है बी, दैट मीन्स क्यू ओ वेक्टर इज बी माइनस ए। पैरेललोग्राम मेथड में अगर दो वेक्टर ए एंड बी हैं तो बीच का वेक्टर ए प्लस बी होता है, एंड द अदर डायगोनल इज ऑलवेज ए माइनस बी और बी माइनस ए, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा डायरेक्शन तुम ले रहे हो। सर ए माइनस बी नहीं होगा वो, कौन सा? यही वाला? ये नहीं, हाँ। क्यू क्यू ओ प्लस ओ आर, सेम सेंस ऑफ रोटेशन इक्वल टू क्यू आर। ये दो वेक्टर सेम सेंस ऑफ रोटेशन में लेने पड़ेंगे तुम्हें, क्यू टू ओ देन ओ टू आर इक्वल टू क्यू टू बी, दिस अच्छा, करेक्ट। ओके। तो क्यू ओ वेक्टर आ गया बी माइनस से, श्योर ये सही है, समझ में आ गया संबित। अब क्यू ओ इज द सेम एज ओ टी, सेम स्ट्रेट लाइन है, सेम डायरेक्शन है, सेम लेंथ है, तो ओ टी वुड बी सेम एज बी माइनस ए। दैट मीन्स क्यू टी कितना हो गया फिर हमारा, क्यू टू टी विल बी क्यू ओ प्लस ओ टी, ओ टी सेम एज क्यू ओ, तो जाएगा ट्वाइस बी माइनस ए। लेकिन अपने को क्या मांगता है, अपने को मांगता है टी क्यू, इसको रिवर्स कर दो, टी क्यू हो जाएगा माइनस टू टाइम्स बी माइनस ए और टू टाइम्स ए माइनस बी, ये टी क्यू आ गया। देख लो एक बार, इसमें कोई डाउट है तो। सर हम्म। सर जैसे ये बी माइनस ए निकला है, तो जो माइनस यूपी, साइन नहीं, माइनस साइन था ना बाहर, तो वो मल्टीप्लाई कर दिया तो ए माइनस बी हो गया। हाँ सर, तो यूपी भी वही होगा ना, बी कौन माइनस सा? ए? यू यूपी, यूपी। यू पी, यू पी इज दिस ना, ये निकालना है ना तुम्हें। हाँ। हाँ, तो इसके लिए तुम क्या करोगे, यूपी निकालने के लिए या तो तुम ये बी है ना, तो ये भी बी हो जाएगा, इससे पैरेललोग्राम ये भी हो गया। तो इस ट्रायंगल में यूपी प्लस बी इक्वल टू ए, तो यूपी हो जाएगा ए माइनस बी, यूपी इज ए माइनस बी। समझ में आ रहा है? ट्रायंगल लॉ में दो वेक्टर सेम सेंस ऑफ रोटेशन में होंगे तो रिजल्टेंट हमेशा ऑपोजिट सेंस में आता है। आरटी बताओ अब। काव्य आरटी क्या होगा? आर, सर हाँ, आर टी, तो हमें क्यू टी की वैल्यू पता है। तुम और आरटी के लिए ये ले लो ना, टी एस आर ट्रायंगल ले लो, तो ट्रायंगल टी टी। क्यू आर क्यों नहीं ले सकते? टी क्यू आर भी तो ले सकते। हाँ, टी क्यू आर भी ले सकते हो। तो टी क्यू आर में सर टी आर की डायरेक्शन कहाँ है, कहाँ होगी? टी आर ही तो निकालना है। देखो, मैं ये वाला ले रहा हूँ ट्रायंगल, टी एस मुझे मालूम है, प्लस हम्म। एस आर, इसका डायरेक्शन ये हो गया, तो इनका रिजल्टेंट उल्टा हो जाएगा, मतलब ऐसे हो जाएगा आर टी। अब टी एस कितना है, टी एस तो ए है, व्हाट इज एस आर, इससे पैरेलल, यूपी, नहीं एस आर, यूपी से इक्वल हो। हाँ, अच्छा, वी हैवंट फाउंड यूपी ये आल्सो। पैरेललोग्राम है ना, ये जैसे पैरेललोग्राम हमें क्यू ओ पता है, ओके। क्यू ओ कितना था, ए माइनस बी। माइनस बी माइनस ए। बी माइनस ए था बी ना क्यू ओ, माइनस ए। या। क्यू ओ वॉज बी माइनस है, तो आर एस से बी माइनस है, तो एस आर कितना हो गया,
B minus A. A minus B. Yes, SR, Oh, it's ultra direction. Okay. right? SR is A minus B. RTB हो गया 2A minus B. लेकिन तुम्हें फिर RT चाहिए तो T हम डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? पैरेलल देखो ना, जैसे ये इसका डायरेक्शन ये है, ये B दे रखा है ऑलरेडी, तो ये वाला भी B होगा, लेकिन अगर मैं उल्टा जाऊंगा तो माइनस B हो जाएगा। Okay. ये होता है। लेकिन उल्टा जाएंगे का मतलब क्या हुआ? उल्टा मतलब इफ आई राइट इट OP, Oh, okay, in that P sense. P2O is B, OP would be minus B. Okay, I got it. तो RTB आ गया, RT कितना आ गया 2A minus B। UR निकाल लो अब। UR तो बहुत सिंपल है, ये A है, ये भी A है, तो 2A हो गया, नहीं करने से पहले ही हो गया तो। नंदिनी डन, आगे बढ़े हम। कोई डाउट तो नहीं है इसमें अब? श्योर है? वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। If we multiply two vectors in such a way that their product is a vector quantity, it is called vector product. If two vectors are multiplied in such a way that their product is a vector quantity, then the product is said to be cross product or vector product. Cross product क्यों बोलते हैं? Because we represent it by writing a cross in between the two vectors. So this is क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, और जो आंसर आएगा वो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी आएगा। द फॉर्मूला इज मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी इंटू साइन ऑफ द थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन देम, इंटू एन कैप। व्हाट इज एन कैप? Direction. यूनिट वेक्टर perpendicular to both A and B। ठीक है। Or you can say that unit vector is perpendicular to the plane containing A and B both। जिस प्लेन में ए एंड बी दोनों लाई कर रहे हैं, उन दोनों के परपेंडिकुलर होगा ये। यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन विच कंटेन्स ए एंड बी बोथ। क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट के एग्जांपल है मोमेंट ऑफ ए फोर्स, टॉर्क जिसको बोलते हैं, इट इज आर क्रॉस एफ। 12th फिजिक्स में तुम पढ़ोगे फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर
आई एल क्रॉस बी, 10th में साइंस में भी था ये, क्रॉस प्रोडक्ट। ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ, एक और भी है, फोर्स ऑन ए करंट, फोर्स ऑन ए चार्ज विच इज मूविंग इनसाइड magnetic field B. B is symbol for magnetic field. तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो उस पर फोर्स लगता है, विच इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, क्रॉस प्रोडक्ट। सो ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट में या वेक्टर प्रोडक्ट में जो फाइनल आंसर आएगा वो वेक्टर क्वांटिटी आती है। अब तो क्वेश्चन ये है कि हमें थीटा पता है, ए पता है, बी पता है, लेकिन डायरेक्शन कैसे निकालोगे? So direction of cross product we find by using right hand thumb rule और right hand screw rule। राइट हैंड थंब रूल का स्टेटमेंट आ सकता है 1 मार्क का। व्हाट इज द स्टेटमेंट? स्टेटमेंट ये है कि अगर हम राइट हैंड की फिंगर्स को फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ रोटेट करें, देन द थंब वुड गिव यू डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। लिखो, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, according to right hand thumb rule, if the fingers of the right hand, if the fingers of the right hand are rotated, fingers of the right hand are rotated first vector to from first vector to the second vector, from first vector to the second vector, then thumb would give direction of cross product। Then thumb would give direction of क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे यहाँ पे अगर मेरे को ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालना है तो क्या करेंगे? फिंगर्स राइट हैंड की ए की तरफ, देखो फिंगर्स राइट हैंड की ए की तरफ, अब इसको बी की तरफ घुमाना है तो थंब कहाँ जा रहा है? बाहर। अब इस 2D में तुम बाहर को कैसे शो करोगे? लाइक दिस, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी और एन कैप। तो एन कैप और ए क्रॉस बी की सेम डायरेक्शन है। सो 2D बोर्ड में थर्ड डायरेक्शन को दिखाने का ये तरीका है। कहने का मतलब ए क्रॉस बी ए के भी परपेंडिकुलर है और ए क्रॉस बी बी के भी परपेंडिकुलर है। हम इसको न्यूमेरिकल से प्रूव भी करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज perpendicular to A vector and vector B, both दोनों के परपेंडिकुलर आएगा। अगर हमें B क्रॉस A निकालना है तो B क्रॉस A नंदन, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। हाँ किधर आएगी डायरेक्शन? फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड पहले B की तरफ, B पहला वेक्टर है ना, अब B से A की तरफ घुमाओगे तो थंब जा रहा है इनवर्ड, B क्रॉस A निकाल रहे हैं, राइट हैंड है ना, तो B टू A, थंब विल गो इनवर्ड। सो दैट मीन्स B क्रॉस A वुड बी नीचे की तरफ। So how is inward the same as downward? सी B टू A, राइट हैंड यूज करना है सबसे पहले तो, यू टू यूज राइट, हाँ। It's my right. So B टू A, so this is the thumb is inside, इनसाइड को इसको डाउनवर्ड शो करोगे। तो 2D में दिखा रहे हैं ना हम लोग, जैसे So in ए क्रॉस बी को आउटवर्ड्स को ऐसे दिखाया था ऊपर की तरफ, ए क्रॉस बी को हमने आउटवर्ड को ऐसे दिखाया था ना, अपवर्ड। तो फिर बी क्रॉस ए में
Hum will go inside, so should downward. That means A cross B and B cross A, are they equal? No. No. So The that means, magnitude will be same though, right? हाँ बट वेक्टर है ना ये तो, A cross B is a vector quantity. So A cross B and B cross A are not equal. That means cross product of vectors is not commutative. लिख लेना, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज नॉट कम्यूटेटिव. जबकि डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी डॉट ए के इक्वल था. डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी वाज द सेम एज बी डॉट ए. सो डॉट प्रोडक्ट वाज कम्यूटेटिव बट इट इज नॉट. क्रॉस नहीं, प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं है बिकॉज ए डॉट बी में डायरेक्शन नहीं था ना. ए बी कॉस थीटा बी ए कॉस थीटा सेम. इसमें डायरेक्शन की वजह से ऐसा हो रहा है. लेकिन कैन आई से दैट ए क्रॉस बी is equal to minus b cross a? यस. सिर्फ डायरेक्शन का तो फर्क है. माइनस साइन लगाने से सेम डायरेक्शन हो जाता है, ऑपोजिट हो जाता है ना डायरेक्शन. तो a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है भाई, a क्रॉस b का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है. अगर हम दो वेक्टर हमारे पास हैं, हम ए बी साइन थीटा थीटा निकालते हैं, उससे हमें मिल क्या रहा है. बताओ जरा, एनी आइडिया. इफ यू हैव टू वेक्टर्स ए एंड बी एंड यू फाइंड a क्रॉस b, व्हाट डज इट गिव. It's a new vector. हम्म. A new vector. नहीं वो तो ठीक है, और कुछ. Look at this diagram. This is A, this is B, this is theta. मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है यहाँ पे, ठीक है. इज दिस परपेंडिकुलर इक्वल टू बी मॉड साइन थीटा. ये परपेंडिकुलर बी साइन थीटा होगा या नहीं होगा. अभी किया था ना, किसी राइट ट्रायंगल में अगर हमें हाइपोटेन्यूज मालूम है तो परपेंडिकुलर बी साइन थीटा होता है, हाइपोटेन्यूज साइन थीटा. पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है बताना जरा. बेस इनटू हाइट. व्हाट इज द हाइट ओवर हियर. That which is nothing but a cross b, come on. So when you find a cross b, it gives us vector area of a parallelogram. In physics, area is a vector quantity. फिजिक्स में एरिया को हम वेक्टर क्वांटिटी लेते हैं. तो दिस इज ए क्रॉस बी. सो ए क्रॉस बी का फिजिकल सिग्निफिकेंस है, इट गिव्स अस वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose two adjacent sides are vector a and b. लिख लो. Cross product of two vectors, cross product of two vectors gives vector area of a parallelogram whose two adjacent sides are vector A and vector B. और अगर मैं इसको हाफ कर दूं तो क्या मिलेगा. किसी पैरेललोग्राम में डायगोनल क्या करता है. डायगोनल डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू टू इक्वल हाफ्स. तो हाफ ए क्रॉस बी से क्या मिलेगा. यस, लिख लो. Triangle का area. वेक्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल whose two sides are A and B vector. Half A cross B would give vector area of a triangle whose two sides are vector A and vector B. ठीक है नंदिनी. yes,
जिया, this is a right-handed three-dimensional coordinate system. X, Y, Z. Unit vector along x-axis I cap होता है, along y-axis j cap होता है, along z-axis k cap होता है. Tell me what will be I cross j using the formula. ठीक है. A cross B is magnitude A, magnitude B sin theta n cap. ठीक है. A की जगह I cap, B की जगह J cap. दोनों के Oh बीच में no, कितना I एंगल है? cross J will be minus k का. It क्या? will be minus k का. It will be minus. No, it's plus only. It's plus only, so it's plus. चलो देखते हैं. n कैप आ रहा है. अब डायरेक्शन के लिए हम राइट हैंड स्क्रू रूल यूज करते हैं. ठीक है. Sir, I'm positive. It's ओके plus. ओके. तो फर्स्ट वेक्टर आई है, राइट हैंड की फिंगर्स आई की तरफ, आई से जे की तरफ घुमाओ. थंब कहाँ पे आ रहा है? ये जेड डायरेक्शन है. एक्स वाई एंड जेड इज लाइक दिस. सो एक्स टू वाई थंब आ रहा है जेड डायरेक्शन में. तो जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कौन सा होता है? जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है k cap. So now you know this result. I cross j is always k. जरा बताना k क्रॉस j क्या होगा? Minus I. Okay, like this. k क्रॉस j. sin 90 n cap. राइट हैंड स्क्रू वो थंब रूल यूज करते हैं. फिंगर्स ऑफ राइट हैंड k की तरफ. k किधर है? k इज बाहर की तरफ. फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड बाहर की तरफ. k टू j जाना है मुझे. j जाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? दिस इज k टू j. द थंब इज लाइक दिस. It would be minus I. This is बाहर की तरफ k था, k to j. Thumb is this, opposite to I, minus I. तो नंदिनी सेंगे शॉर्टकट सर बता दो. शॉर्टकट ही है इसका. हर चीज का शॉर्टकट है. बट दिस नो शॉर्टकट टू सक्सेस. हार्ड वर्क इज द ओनली की. ठीक है. आई जे के लिखो. आई क्रॉस जे अगर निकालना है तो ऑपोजिट वाला आ जाएगा के. जे क्रॉस के निकालना है तो ऑपोजिट वाला आ जाएगा आई. के क्रॉस आई निकालना है तो ऑपोजिट वाला आ जाएगा जे. अगर हम इसे ऐसे लिखेंगे तो ऑपोजिट वाला लिखना है. लेकिन अगर तुमने डायरेक्शन उल्टा कर दिया, जे क्रॉस आई निकालना है तो माइनस के हो जाएगा. आई क्रॉस के निकालना है तो माइनस जे आएगा. और के क्रॉस जे निकालना है तो माइनस आई आएगा. इफ यू गो क्लॉकवाइज, आई क्रॉस जे निकालना है तो ऑपोजिट वाला क्या आ गया? जे क्रॉस के निकालना है. आई जे के को साइकिल में लिखो ऐसे. आई क्रॉस के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे. एंड रिवर्स डायरेक्शन में नेगेटिव हो जाएगा डायरेक्शन. Each time you won't be using this direction concept, we'll use this. What will be I cross I? I. It will be 0. दो वेक्टर का क्रॉस Okay, प्रोडक्ट, आइडेंटिकल वेक्टर का पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा बिकॉज साइन 0 इज 0. yeah. ठीक है. बिकॉज द एंगल बिटवीन देम वुड बी 0. सो आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के विल बी ऑलवेज 0.
So in case if you come across a question that find a vector perpendicular to two given vectors, तुम क्या करोगे? Answer would be plus minus A cross B. Suppose एक question आता है कि find a vector which is perpendicular to both A and B. तो हमने अभी देखा था A क्रॉस B हमेशा A के भी परपेंडिकुलर होगा, B के भी परपेंडिकुलर होगा. इनफैक्ट B क्रॉस A भी A के भी परपेंडिकुलर होगा, B के भी परपेंडिकुलर होगा. तो वेक्टर परपेंडिकुलर टू टू गिवन वेक्टर्स वुड बी ऑलवेज प्लस माइनस A क्रॉस B. तो इफ यू फाइंड A क्रॉस B, वो भी A और B के परपेंडिकुलर है, और B क्रॉस A वो भी A और B के परपेंडिकुलर है. और अगर क्वेश्चन आता है फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू A एंड B बोथ, तो हम क्या करेंगे? इसी वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा. तो पहला वाला है वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी बोथ. दूसरा वाला है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी. The next class is more questions on this cross product, and make a rule that whatever is done in the class same day you revise it. चाहे कितना ही important काम क्यों ना हो, चाहे कहीं भी घूमने जाना क्यों ना हो, मम्मी के साथ शॉपिंग करना हो, फिर भी फिजिक्स को सेम डे रिवाइज करना है नंदिनी. अब तो टेस्ट आने वाले होंगे ना स्कूल में. यूटीज आ रहे हैं. बस फिर तो अब तो पढ़ना मुहूर्त निकलवाओ पढ़ाई का फिर अब. हम्म, Right then, ending the class. See you next time, same time, same place. Thank you. Thank Bye. you.